So, hello students, let's start the next chapter of Unit 1. Name of the chapter is Rama to the Rescue. Now, from the name of the chapter, we can make out that Rama is the main character of the story. To the rescue. Now, what does this mean? Rescue means that you save someone, okay? When you save someone from a problem, you take him out of the problem, so that is the meaning of the rescue. Now, the first question, before going ahead with the story, explanation of the story, first we'll do few questions. Now you can see three pictures. You have to identify the following people and also how these people help you. Now, first is the picture of a policewoman. So, policewoman helps you in catching the thief or robbers. Second picture is of a doctor. Doctor helps you or rescue you from the illness and treats us in the sickness, gives us medicines. Then the third picture is of firefighter. Now the firefighter rescue us from the fires by putting out the fires. Firefighters also teaches us or gives us lesson that what to do in the fire situation. Okay, so that is the question. That is question 1. Now we'll move to question 2. Choose the correct option to complete the sentence. So the word rescue means what dash. So क्या मतलब है rescue का? Three options are given to you: make fun of someone, save someone, third is ask someone for the help. So, as we discussed earlier, also, the answer would be save someone, second option. Now, we'll move on to the third question. Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. चार ऑप्शंस आप देख सकते हो. उसमें क्वेश्चन है कि आप किसको आपको लगता है रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत किसको है. ठीक है. फर्स्ट इज अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन अ फायर. वेरी ट्रू. सच मैन नीड्स हेल्प इफ ही इज स्टक इन अ building of fire. Okay. Then a woman buying vegetables in the market. Does she need help? किसी को वेजिटेबल खरीदना है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब किसी प्रॉब्लम में है क्या वो? नो, नॉट एट ऑल. नाउ अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, जिसने अपनी लेग को हर्ट कर लिया है. ओके, सो येस, that dog needs to be rescued and taken to the vet. Now the fourth option is a tree being cut down in a forest. So does that tree need to be rescued from cutting? Yes. So we should rescue the tree from cutting down. So these are the three questions, okay, which we have done. Now the rest of the 4 and 5 questions are very easy. You can discuss with your friends. So before wasting time, let's go ahead and start reading the lesson. Now, at the first look of the lesson, it gives you the picture of a comic. Okay, you must have read maybe comics like Champak in your childhood days. So वैसा लुक आ रहा है, एक है ना, एक कॉमिक लुक बुक का इसमें वैसा एक लुक आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. नाउ दिस स्क्रिप्ट is written by Luis M. Fernandez, and the illustrations means all these drawings, these boys and girls, how they have been put in front of you. This is called illustration. It is done by Ram Wairkar. Okay. Now it is a folk tale from Tamil Nadu. Okay. So now you can see the first box. In the first box there is one pink box and one white kind of bubble is there. Okay, so the pink is the narration. Okay, but the white is like the dialogues given by the main characters.
Now, in a village, one night, husband and wife are sitting in one room, and husband is yawning and wife is also doing something, and but she is not looking towards the husband, she's looking somewhere outside. Oh what a hard day it has been. अब हस्बैंड ने बहुत सारा काम करा होगा आके, तो वो घर आके कह रहे हैं आज का वाह क्या दिन रहा, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो वो बहुत थक कर आया है, वो बेड पे लेट भी गया है, बट आप देख सकते हैं उसकी वाइफ अभी भी बाहर ही देख रही है, उसका ध्यान हस्बैंड की तरफ नहीं है। सो इतना दो डायलॉग्स कहने के बाद द वाइफ द हस्बैंड इज सेइंग व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, एंड द वाइफ इज सेइंग है ना, ऐसा कर रही है ना। तो तब वो कहती है सुनो, लिसन। अब उसका ऐसा बिहेवियर देख के जो हस्बैंड है वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है, और वो भी थोड़ा सा इधर उधर देखने लग पड़ता है कि उसकी वाइफ की नज़र कहाँ पे है। सो नाउ आफ्टर लिसनिंग, तो उसने जब वाइफ ने बोला लिसन, तो वाइफ की बात को सुन के उसने सुना, तो उसको समझ आया somebody is trying to get in। उनको वो आवाज़ें सुनी तो उनको समझ आया कि उनके घर में कोई रॉबर या थीफ घुस रहा है, ऐसी आवाज़ हो रही है, ऐसी खटखट सुनाई दे रही है। सो नाउ आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड। पहले अंदर आने की उनको आवाज़ आ रही होगी, वो कुछ दरवाज़ा या दीवार तोड़ रहा होगा, अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि आवाज़ बंद हो गई है, मतलब वो अंदर आ चुका है। तो अभी झट से हस्बैंड कहते हैं तुम यू लाई डाउन, डोंट लुक, कुछ देखो मत और छुप जाओ। It is a thief. He must have somehow got past Rama. Now comes the main character of the story. तो वो कह रहा है ये तो चोर अंदर घुस गया है। Somehow वो जो चोर है रामा की नज़रों से बचकर आगे आ गया। Got past रामा मतलब रामा को वो पीछे छोड़ गया है। जैसे somehow आप जा रहे होते हो, ठीक है, यू आर क्रॉसिंग समथिंग और आपके साइड पे आपके कोई अंकल खड़े थे, सो यू आर सेइंग दैट आई हैव जस्ट गॉट पास्ट थ्रू माई अंकल, तो अभी मैंने उनको पीछे छोड़ा है, ठीक है। Rama was now in the pink box again it is written Rama was the village कोतवाल। तो ये कौन है रामा? रामा विलेज का कोतवाल है। कोतवाल means a policeman. Now, based on these two pictures, let us discuss few questions before going ahead. Circle the odd one out. The characters are husband, wife and children. क्या children की बात हुई है अभी तक? No. We have not talked about children. So, children is odd one. Who entered the house? Guest, robber और कोतवाल? नहीं तो guest आया, कोतवाल तो आना चाहिए पर अभी नहीं आया, so the answer is robber. Now, what should we do? I will listen. I will tell you. Listen. तो अब दोनों बातें करते हैं कि चोर तो अंदर घुस गया है डेफिनेटली, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हस्बैंड ने एक प्लान बनाया और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एक ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है मीन वाइल। तो अब चोर सोच रहा है, ये जो क्लाउड बना हुआ है दैट इज़ अ डायलॉग बॉक्स। वॉइसेस, दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। अस्लीप का मतलब सो जाएं। उसको आवाज़ें सुनाई दी तो उसने बोला अब तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक ये सोते हैं, ठीक है। सो लास्ट पिक्चर में वो कह रहा है आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। पता नहीं, अब उसे हैरानी भी हो रही है, वो सोच रहा है कि पता नहीं इन्होंने अपना पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये यू कैन सी दिस ब्रोकन वॉल इन दिस पिक्चर, राइट। तो उसने यहाँ पर यहाँ से ही हैज़ एंटर्ड टू देयर होम, ओके। नाउ अगेन the robber is listening to their talks and saying, they are saying something, perhaps they are talking about their money, I would rather listen closely। तो उसको लगता है कि ये बातें तो कर ही रहे हैं, शायद ये बाई चांस ऐसी भी कोई बात कर ले जिससे पता चले कि घर का मनी कहाँ पर छुपा हुआ है, तो मैं क्लोजली थोड़ा पास जाके इनकी बातों को सुनता हूँ। सो व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड? अब वो उनकी बातें सुन रहा है और यहाँ पे वाइफ कह रही है हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन टॉपिक चेंज्ड। अभी वो बातें कर रहे थे
चोर के बारे में। तो अब वो बात कर रहे हैं हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। तो हस्बैंड आंसर करते हैं, इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। Rama, yes, that's a good name. So wife says कि it's a very good name. I am okay with the name. When he is in the house, I will call out softly to him, Rama, Rama. अब ये सब बातें देखो, इस पिक्चर में कौन सुन रहा है? रॉबर्ट सुन रहा है, उसे गुस्सा भी आ रहा है कि क्या ये बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब वो, उसकी वाइफ कह रही है कि जब उनका बच्चा घर में होगा ना तो मैं उसे बहुत सॉफ्टली बुलाऊंगी, रामा रामा। होता है ना, आप ही घर पे होते हो तो मम्मा बुलाती है आपको कुछ किसी काम के लिए, तो आपका नाम सॉफ्टली बुलाती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, लेट्स फाइंड आउट। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, इज इट ट्रू? यस, जो प्लान था वो हस्बैंड डिस्कस करता है। The thief wants to know where they kept their jewels. ठीक है, तो वो क्या jewels जानना चाहता था? No, वो चाहता था कि कहाँ पर मनी है। Okay, so this statement is incorrect, गलत है। तो चलिए आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड। अब वो कह रहा है कि तुम घर पे तो उसे बड़ा सॉफ्टली बुलाओगी, पर अगर वो यार्ड में है। अब यार्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? यार्ड का मतलब होता है जैसे जो आपका घर का गार्डन एरिया है, जो खुला आंगन है, उसको हम यार्ड कहते हैं। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। तो ऐसे वो कहती है अगर वो थोड़ा बाहर होगा तो मैं थोड़ी आवाज़ तेज बुलाऊंगी। सो अब ये सब बातें सुन के ये जो सेकंड पिक्चर इस पेज पे है उस पर रॉबर्ट सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। तो उसको ये लग रहा है ओहो, अपनी ये जो सिली गेम है उसे बंद करो और पैसे के बारे में बात करो, ठीक है, और फॉल अस्लीप एटलीस्ट। और अगर नहीं बात करनी है तो सो ही जाओ, है ना, अस्लीप। So, but my dear, what if the boy is not in the house or in the yard, but in the street? तो बड़ी स्मार्टली हस्बैंड कहता है वाइफ, अगर बच्चा घर पे भी नहीं है, बाहर हमारे यार्ड में भी नहीं है, पर बाहर गली में चला गया है, तो उसको तुम कैसे बुलाओगी? Then wife answered, oh, then I will call out very loudly. ठीक है, रामा रामा। तो बहुत तेज से वो बुलाएगी। अब जब उसने तेज से आवाज़ लगाई तो वो रामा रामा आवाज़ किसके कान में गई? रामा के कान में गई। क्या वो रामा उनका बच्चा था? नहीं, रामा वही विलेज का कोतवाल था। तो उसको ये आवाज़ आ गई, तो ये स्मार्ट उन्होंने एक्ट करा। तो ये देखो, अब रामा रामा जब उसको आवाज़ सुनी तो जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी वो उस घर की तरफ भाग पड़ा। कौन भाग पड़ा? कोतवाल। So let's discuss, okay, the questions. Let's continue the reading. These questions are very easy. Now Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. So तो रामा जो है उसी जो विलेज का कोतवाल है भागा उस घर की तरफ। तो जब वो उस घर की तरफ पहुंचा तो वो डायलॉग कह रहा है, ओ ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। जाकर उसने टूटी दीवार देखी तो उसे समझ आ गया कि दरवाज़ा किसी ने कोई अंदर इस घर में घुस गया है। तो वो भी उसी रास्ते उस घर में घुसा। एंड अब आपको देखो इन दिस पिक्चर इसी जगह से कोतवाल है और यहाँ पर अभी तक इसने रॉबर ने कोतवाल को नहीं देखा है। वो अभी भी यही सोच रहा है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। तो अब जब उसने जोर से रामा रामा चिल्लाया और वो चुप हो गई चिल्लाने के बाद, तो अब चोर सोच रहा है चलो अब तो इन्होंने अपनी बातचीत बंद करी। चैटर मतलब टू टॉक समथिंग, चैट समथिंग कंटिन्यूसली व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स एंड यू आर टॉकिंग, सो दैट इज द चैटरिंग। ओके, सो अब वो पीछे से कोतवाल ने उनको देख लिया है। ओके, अब अभी भी वो नाउ ही इज थिंकिंग नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड ये क्या हुआ एकदम, वो तो सोच रहे हैं पर पीछे से हाथ किसका आया?
कोतवाल का, एंड वो गर्दन पकड़ लेता है, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। तो उसकी आवाज हस्बैंड वाइफ अंदर से सुन लेते हैं, एंड इट्स रामा, ही हर्ड अस, उसने हमें सुन लिया, द प्लान वर्कड, प्लान काम कर गया, वी आर सेव्ड, हम बच गए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का कितना यूज हुआ है, द प्लान वर्कड, वी आर ओके, वी आर सेव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम बच चुके हैं, हम बच गए हैं। ही हर्ड अस, हर्ड मतलब वो उसने हमें सुन लिया, ओके, सिंपल past tense. The man and his wife, by their cleverness, had saved themselves from being robbed. तो मैन और वाइफ ने अपनी क्लेवरनेस के साथ अपने आप को बचा लिया, अपने मनी को भी बचाया, अपने घर को बचाया। कैसे? समझदारी से। सो व्हाट मॉरल वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, that in the time of a problem, any problem, we should नॉट पैनिक। जब कोई मुसीबत हमारे सिर पे आती है तो हमें रोना धोना स्टार्ट या घबराना शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पेशेंटली थोड़े ध्यान से हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि ओहो ये मुसीबत आ गई, अब तो हम बर्बाद हो गए। नथिंग लाइक दैट, राइट? Now this is a small part of the Amar Chitra Katha. Amar Chitra Katha, they are the folk tales. Okay, so these are also the stories in which many short stories are written. So this was about the story Rama to the rescue. I hope you all understood it. And still, if you have any queries, you can ask me. Thank you.